Hello. Now miscellaneous examples on chapter number 1. Okay. So here first example is example number 41. If relation 1, that is R1, and relation 2, R2, are equivalence relations in a set A, then show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation. So equivalence relation means we have to prove the relation is reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव बराबर इट इज ऑन सेट ए। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज एनी एलिमेंट, बराबर ये हमने जनरल में एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। नाउ R1 एंड R2 are equivalence. R1 and R2 are equivalence relation, and if R1 and R2 are equivalence, it means they are reflexive, symmetric and transitive. तो अगर आपको एक एलिमेंट दिया गया है सेट ए में R1 इक्विवेलेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि A का ऑर्डर पेयर विथ इटसेल्फ बिलोंग्स टू R1 एंड A का ऑर्डर पेयर विथ A is member of R2 also. So order pair A belongs to R1 and order pair AA belongs to R2. It means order pair AA is member of R1 intersection R2. तो हमने प्रूव कर लिया कि for every A belongs to A with itself is member of R1 intersection R2 and therefore R1 intersection R2 is reflexive. बराबर ये हमने प्रूव कर लिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम प्रूव करेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक, बराबर R1 intersection R2 is symmetric, and for that let order pair AB belongs to R1 intersection R2। अब इसका फ्लिप हमको प्रूव करना है, मीन्स ऑर्डर पेयर BA belongs to R1 intersection R2 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि भाई AB belongs to R1 and AB belongs to R2. Now R1 and R2 are equivalence, means R1 and R2 are symmetric, क्योंकि अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होंगे। तो R1 is symmetric, R1 is symmetric, that is order pair BA belongs to R1. R2 is also symmetric relation, therefore order pair BA belongs to R2। तो यहां से हमको मिल गया कि ऑर्डर पेयर BA belongs to R1 and R2 both, that is R1 intersection R2, and it means R1 intersection R2 is symmetric also, बराबर। तो ये हमने प्रूव कर लिया relation is symmetric. Now we prove the relation is transitive also. For that let order pair AB and order pair BC belongs to R1 intersection R2, और हमें प्रूव करना है ऑर्डर पेयर AC is member of R1 intersection R2। तो यहां से हमको मिल जाएगा AB belongs to R1 and BC also belongs to R1, and R1 is transitive because it is equivalence relation. So it is transitive relation, and if it is transitive relation, then order pair AC is member of R1, and similarly order pair AB belongs to R2 because here it is R1 intersection R2. So AB belongs to R2, order pair BC belongs to R2, R2 is also transitive, but this one is also transitive, and it means order pair AC belongs to R2.
तो हमने पहले प्रूव किया ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R1, यहाँ पर हमने प्रूव किया ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R2 एंड देयरफॉर ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, बराबर। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया कि ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, R1 intersection R2 is symmetric, and R1 intersection R2 is transitive. It means the relation is equivalence. Okay, so this one is our example number 41. Okay, now after example number 41, we move on number 42. अब देखते हैं number 42 में। तो यहाँ पर R be a relation on set A of order pairs of positive integers defined by order pair xy is related to order pair uv if and only if x into v is equal to y into u, show that R is an equivalence relation. Okay, तो सबसे पहले जो हमको डेफिनेशन दिया है ना वो लिख देते हैं, xy is related to order pair uv if and only if x into v is equal to y into u. अब जब भी ऑर्डर पेयर टाइप क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर एक्स वाई एंड ऑर्डर पेयर यू भी दिया गया है, तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है जो एक्स एंड वाई है उनके एलिमेंट आप लेफ्ट साइड में ले आओ, एक साइड एक्स वाई के एलिमेंट और एक साइड यूवी के एलिमेंट, और फिर आप चेक करना स्टार्ट करो क्योंकि वो थोड़ा सिंपल रहेगा चेक करने के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा अब कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का रेशियो एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये रेशियो इक्वल हो गया तो वो जो ऑर्डर पेयर से वो रिलेटेड होगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो फॉर दैट सबसे पहले हम एक ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं एक्स वाई फ्रॉम सेट ए, और अब हम चेक करेंगे किसके लिए, तो फॉर एक्स वाई आर एक्स वाई चेक कर रहे हैं हम कि भाई ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल है या नहीं, रिलेटेड है या नहीं। सो फॉर एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक रेशियो। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का रेशियो कितना होगा, एक्स अपॉन वाई। दिस वन इज ऑल्सो x upon y, तो x upon y is same as x upon y, this one is always true, this one is always true, and so we can say यहाँ पर हम चेक कर रहे थे बराबर कि एक्स वाई रिलेटेड एक्स वाई है या नहीं है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, दिस वन इज ट्रू। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज रिलेटेड with xy, and so we say R is reflexive relation. Now reflexive done, we check symmetricity. तो for symmetricity सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, let order pair xy is related to order pair uv। अब हमें फ्लिप चेक करना है, means uv is related to xy or not, ये हमें चेक करना है। तो xy is related to uv, that is x upon y is equal to u by v। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई u by v is same as x by y। तो आपको मिल चुका है u एंड v का रेशियो, तो ये ऑर्डर पे uv is related to x upon y, so it is order pair xy। तो xy is related to uv means uv is related to xy and therefore R is symmetric। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। और अब आते हैं थर्ड में, प्रूव करते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई is related to order pair uv and
order pair UV is related to order pair PQ. अब सबसे पहले आपने लिखा है XY is related to order pair UV, that is ratio of X and Y is same as ratio of U and V. And one more thing, order pair UV is related to order pair PQ, that is U by V is equal to P by Q. तो यहां से आपको मिल जाएगा X upon Y is equal to U upon V, but U upon V is same as P by Q. So X by Y is equal to P by Q. तो order pair XY is related to order pair PQ, और यही हमें प्रूव करना था ट्रांजिटिव के लिए. So R is transitive, and if it is transitive, then we can say R is an equivalence. Alright, so this relation is equivalence. This one is our number 41 and 42. Okay, so after that, next one is number 43, and 43 is, let X is a set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and R1 be the relation in X given by R1 is equal to set of order pair XY such that X minus Y is divisible by 3, and R2 be another relation on X given by R2 is equal to set of order pair XY such that X and Y, set XY is subset of 1, 4, 7. ओके मीन्स या तो X एंड Y दोनों में जो एलिमेंट है वो 1, 4, 7 से होंगे, या तो फिर X एंड Y सेट XY इज सबसेट ऑफ 2, 5, 8. मीन्स X एंड Y जो एलिमेंट होंगे वो 2, 5, 8 में से होंगे, या तो फिर सेट XY इज सबसेट ऑफ 3, 6 एंड 9. मीन्स X एंड Y ये दोनों नंबर 3, 6, 9 में से होंगे. तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन दिया गया है ना, उसमें जो एलिमेंट है X एंड Y दोनों एलिमेंट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो 1, 4, 7 में से है, या तो 2, 5, 8 में से है, या तो 3, 6, 9 में से है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डिफरेंस आ रहा है ये 1 एंड 4 है, तो दोनों का डिफरेंस है वो 3 है, मीन्स -3. 1 एंड 7 का जो डिफरेंस है वो -6 है, मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 3 का मल्टीपल है. डिफरेंस इन एनी सेट, आप 1, 4, 7 सेट उठाओ या 2, 5, 8 या तो 3, 6, 9 कोई भी सेट उठाओ और उनके एलिमेंट का डिफरेंस लेते हैं तो वो 3 का मल्टीपल है. और आपको प्रूव क्या करना है, R1 इक्वल टू R2, ये आपको प्रूव करना है. तो इक्वल हम कैसे प्रूव करते हैं, अगर आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, x इक्वल टू वाई प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले प्रूव करते हैं x सबसेट y और फिर प्रूव कर लेते हैं y सबसेट x और फिर बोलते हैं दे आर इक्वल. चलो तो अब सबसे पहले जो मैंने कंडीशन बोला रिलेशन देख के उसी को देख लेते हैं कि हियर डिफरेंस between two elements, difference between any two elements, आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ, any two elements of set 1, 4, 7 या तो set 2, 5, 8 या तो फिर set 3, 6 and 9 is multiple of 3. बराबर, जो क्वेश्चन
देख रहे थे हम, उसी टाइम मैंने बताया था कि भाई ये दोनों जो सेट दिए गए हैं उसमें मल्टीपल ऑफ 3 है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आप कोई भी नंबर उठाएंगे x एंड y, तो x माइनस वाई जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3। इट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो ना कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। तो आप जो भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो सभी ऑर्डर पेयर में डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 आएगा, और अगर वो डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 है तो वो किसका मेंबर हो जाएंगे? रिलेशन R1 के, बराबर। तो अगर हम ये जो 3 सेट दिए हैं उसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करते हैं तो उनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 है। दैट्स व्हाई R2 इज सबसेट ऑफ R1। ये हमारा एक रिलेशन आ चुका है। अब हम देखते हैं R1 सबसेट R2 कैसे प्रूव किए हैं। तो अगर आप कोई भी एलिमेंट, बराबर, यहां से कोई भी एलिमेंट लेते हैं R1 में से, तो R1 में आपको दिया गया है ऑर्डर पेयर XY बिलोंग्स टू R1। अगर हम ऑर्डर पेयर XY बिलोंग्स टू R1 लेते हैं तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई is divisible by 3। xy belongs to R1, it means x minus y is divisible by 3। तो x minus y is divisible by 3, तो आप जो सेट xy बनाएंगे, आपको x एंड y कहां से लेने हैं? मेन सेट x में से। तो xy is from 1 4 7, या तो वो 1 4 7 के मेंबर बन जाएंगे, या तो फिर सेट एक्स वाई इज सबसेट ऑफ 2 5 8, या तो फिर सेट एक्स वाई है वो मेंबर हो जाएगा 3 6 9 का। एंड देयरफॉर R1 is subset of R2, number 2, and so from 1 and 2 R1 equal to R2। ये हो चुका है हमारा नंबर 43। Okay, after 43, number 44, here f is a function from x to y. Define relation R in x given by R is equal to set of order pair AB if FA equal to FB। और आपको चेक करना है whether R is equivalence relation or not। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। Let A belongs to X is any element, बराबर। Let X belongs to A is any element। अब हम चेक करेंगे for A कॉमा A, बराबर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब A का रिलेशन खुद के साथ। तो फॉर A कॉमा A, अब ए बी ऑर्डर पर अंदर आने के लिए क्या होना चाहिए? तो एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ऑर्डर पर ए के लिए क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एंड दिस वन इज ऑलवेज ट्रू, बराबर। एफ ए इक्वल टू एफ ए, दिस वन इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी ए, फॉर एवरी ए, and therefore we can say order pair AA belongs to R, and so R is रिफ्लेक्सिव, बराबर। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ऐसा हमने प्रूव कर लिया। अब चलते हैं सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए लेट ऑर्डर पेयर AB belongs to R। AB belongs to R, therefore f of A is equal to f of B, and f of A equal to f of B is same as FB equal to FA, and FB equal to FA, it means order pair BA belongs to R, and so R is symmetric। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि भाई रिलेशन सिमेट्रिक है।
और अब हमें प्रूव करना है द रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो फॉर ट्रांजिटिव लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर ए सी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, and BC belongs to R, it means f of B is equal to f of C. So f of A is equal to f of B and f of B is equal to f of C. So we can say f of A is same as f of C, and यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑर्डर पेयर AC belongs to R and so R is transitive। तो हमने पहले प्रूव किया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, अभी प्रूव किया ट्रांजिटिव है, एंड दैट्स व्हाई आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, वो प्रूव हो चुका है। सो आवर नंबर 44 कंप्लीट। नाउ टर्न ऑफ नंबर 45, और 45 में आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर एसोसिएटिव एंड विच आर कॉम्यूटेटिव। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए। यहां पर आपको ए स्टार बी इक्वल टू 1 दिया गया है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। अब कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है, मतलब कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूव करना है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 1, अगर आप बी स्टार ए फाइंड करेंगे तो वो भी 1 ही होगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन है फॉर एनी टू नंबर इफ वी अप्लाई स्टार देन आंसर इज 1, and therefore A star B is equal to B star A, and so star is commutative. This one is commutative binary operation. अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। तो ऑर्डर मतलब ए स्टार बी स्टार सी। अब अगर हम ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ए स्टार बी का आंसर हो जाएगा 1 स्टार सी, बट हमारी डेफिनेशन ही है ऑलवेज आंसर 1। नाउ वी फाइंड ए स्टार बी स्टार सी, so it is a star b star c is 1 and a star 1 is 1। तो यहां से आपको मिल चुका है a star b star c is same as a star b star c, and so star is associative। ये एसोसिएटिव प्रूव हो चुका है। अब बी पे आते हैं, और बी में आपको जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है ए स्टार बी, उसका डेफिनेशन है ए प्लस बी बाई 2। ओके, तो ए प्लस बी बाई 2 इज सेम एज बी प्लस ए बाई 2 and b plus a by 2, so it is b star a, and therefore star is commutative। whenever star is a commutative binary operation। now we check associative। चलो यहाँ पर ऑलरेडी a by 2 प्लस b by 2 है, तो कोएफिशिएंट दिया गया है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होंगे। फिर भी थोड़ा जनरल में ट्राई करते हैं। a स्टार b स्टार c, डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है आपको दोनों नंबर को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, देन स्टार सी। वापस दोनों नंबर, जो दो नंबर के बीच में स्टार ऑपरेशन दिया गया है, वो दोनों को ऐड करना है और फिर बाय 2 डिवाइड कर लेना है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c
अपॉन में 4 and now we find a star in bracket b star c. So it is a star. Definition of operation is add the number and then divide by 2. तो वापस अगर हम स्टार अप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर को ऐड कर लो। चलो ये दोनों नंबर को ऐड कर लिया हमने एंड फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो दिस टाइम आंसर इज 2a plus b plus c upon 4 and so we can say a star b star c is not same as a star in bracket b star c and so this one is not associative। बराबर, क्योंकि फर्स्ट में आंसर था a plus b plus 2c और यहाँ पर है 2 plus a plus 2a plus b plus c upon 4, so it is not associative, so this one is our number 46। now after that number 46, now it is 46, so find the number of all 1 function from set a to itself, means we have function f from a to a, that is f is a function from set 1 to 3 to set 1 to 3 itself। और आपको क्या चाहिए, 1 फंक्शन चाहिए, तो 1 फंक्शन के लिए डिफरेंट नंबर डिफरेंट आंसर होना चाहिए, बराबर, डिफरेंट नंबर डिफरेंट आंसर। सो फॉर 1 बिलोंग्स टू ए, जो आपका डोमेन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फॉर 1 बिलोंग्स टू ए वी हैव 3 चॉइसेस, बराबर, आपके पास 3 चॉइसेस है। कौन सी 3 चॉइसेस, तो 1 2 3 में से कोई भी एक एलिमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपके पास 3 चॉइस है, ओके। देन फॉर 2 बिलोंग्स टू ए वी हैव 2 choices। why 2 choices, because we want 1 function। तो जो आंसर आपका 1 का हो चुका है वो आंसर तो आप 2 को नहीं दे सकते, अदरवाइज वो many 1 फंक्शन हो जाएगा। सो फॉर 2 बिलोंग्स टू ए वी हैव 2 choices and for one more 3 belongs to a we have only 1 choice, बराबर। जो एलिमेंट बचा होगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी 1 का इमेज है, सेकंड एलिमेंट कोई भी, जो बाकी के 2 एलिमेंट है उसमें से कोई एक एलिमेंट 2 का इमेज है, और जो एलिमेंट बचेगा वो कंपलसरी 3 का इमेज होना चाहिए, बराबर, 1 चॉइस। एंड देयरफॉर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर वी हैव 3 into 2 into 1, that is 6 1 फंक्शन, हमारे पास 6 1 फंक्शन होंगे फ्रॉम ए टू ए, ओके। so after that number 47, now number 47 is a set A containing 1 2 3, then show that number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3। अब आपको ये प्रूव करना है कि भाई रिलेशन है ऑन सेट कंटेनिंग 1 2 3 और जिसमें आपको 1 2 एंड 2 3 को कंपलसरी मेंबर बनाना है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सेट ए इज गिवन 1 2 3, 1 2 एंड 2 3 कंपलसरी एलिमेंट अंदर आपको रखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिलेशन नंबर 1, पहला ट्राई करते हैं। अब रिलेशन में आपको क्या करना है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मींस 1 का 1 के साथ पेयर, देन 2 का इटसेल्फ मतलब 2 के साथ पेयर, एंड 3 का इटसेल्फ के साथ पेयर। ये तो कंपलसरी रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए रखा हमने, बराबर। अब आपको बोला गया है कि कंटेनिंग 1 2 मींस ऑर्डर पेयर 1 2 आपको अंदर रखना है, देन ऑर्डर पेयर 2 3 भी आपको अंदर रखना है। चलो ये भी हमने रख दिया।
अब आपको बोला गया है ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन ट्रांजिटिव बनाने के लिए, अभी तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि ऑर्डर पेयर 1 2 है एंड ऑर्डर पेयर 2 3 है। अगर आपको ट्रांजिटिव बनाना है तो इसके अंदर आपको एक और ऑर्डर पेयर लिखना पड़ेगा 1 3। नाउ इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। बराबर, ये सिमेट्रिक नहीं है। व्हाई? बिकॉज हियर 1 2 इज इन आर 1 but 2 1 is not in R1. 2 1 is not in R1 and so it is not symmetric. तो ये हमने पहला रिलेशन बना दिया है। अब हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर्स है कितनी, अवेलेबल ऑर्डर पेयर्स कितनी है वो हम पहले देख लेते हैं, जिससे और अच्छे से हमको आइडिया मिल जाए। तो रिलेशन इज ऑन ए, तो ए क्रॉस ए में टोटल 9 ऑर्डर पेयर होगी, 1 1 2 2 3 3 1 2 then 1 3 then 2 1 2 3 then 3 1 and 3 2। बराबर, इतनी ऑर्डर पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमने एक रिलेशन बनाया है जिसमें हमने ऑलरेडी 6 ऑर्डर पेयर यूज कर ली है। अब देखते हैं एक और रिलेशन बना सकते हैं या नहीं। तो ये तो हमारा स्मॉलेस्ट रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम एक और बना सकते हैं। तो इतनी पेयर्स तो लिख ही देते हैं पहले, 1 1 2 2 3 3 बराबर, इसके बाद 1 2 2 3 1 3। ये हमने इतनी ऑर्डर पेयर्स लिख दी है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी ऑर्डर पेयर ऐड करनी चाहिए हमें। तो रिलेशन हमें ट्रांजिटिव बनाना है बट सिमेट्रिक नहीं बनाना है। तो हमने 1 के साथ 1 ऑर्डर पेयर यूज कर ली है, 1 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर भी यूज कर लिया है, 1 के साथ 3 का ऑर्डर पेयर भी यूज कर लिया है। तो 1 के साथ हमारे पास जितनी अवेलेबल थी वो सब यूज कर ली। 2 के साथ क्या है हमारे पास, तो 2 के साथ 3 ऑलरेडी हमको दिया गया है, 2 के साथ 2 ये भी हमने ऐड कर ली है। अब हम एंटर करते हैं 2 1, क्योंकि 2 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर नहीं था जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 हो ऐसा। तो 2 1 ये हमने एक नया ऑर्डर पेयर यूज किया। क्या अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो यस इट इज अगेन ट्रांजिटिव, क्योंकि आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाएंगे तो 1 2 एंड 2 3 तो इनका 1 3 हो गया, 2 1 एंड 1 3 लेंगे तो वो हो जाएगा 2 1 एंड 1 3, तो वो 2 3 हो जाएगा। तो कोई इसमें आपको ट्रांजिटिव में तकलीफ नहीं होगी, बट दिस वन इज अगेन नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 3 भी अभी भी हमारे पास ऐसी पेयर है जिसका रिवर्स नहीं है। तो दिस वन इज अनदर रिलेशन। और ट्राई करते हैं नंबर 3। अब नंबर 3 में ये जो हमने R2 बनाया उसमें और ऑर्डर पेयर ऐड करना ट्राई करेंगे, 1 1 2 2 3 3। चलो 1 के साथ 2 ये ऑलरेडी आ चुका है, 2 के साथ 3 ये भी आ चुका है, 1 के साथ 3 ये भी आ चुका है। अब 2 1 हम ले चुके हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो 3 का चांस देखते हैं अब। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 के साथ 3 आ चुका है, फिर 3 के साथ 2, इसका एंट्री कहीं नहीं है, 3 के साथ 2 कहीं पर नहीं है। तो अगर हम 3 2 ऑर्डर पेयर यूज करते हैं तो भी ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बराबर, ये रिलेशन आपके लिए ट्रांजिटिव भी हो जाएगा एंड सिमेट्रिक अभी भी नहीं है, क्योंकि 1 2 का फ्लिप 2 1 वो हम अंदर यूज नहीं कर रहे हैं। तो दिस वन इज अनदर वन विच इज नॉट सिमेट्रिक। अब क्या इससे आगे कर सकते हैं हम? तो इससे आगे अगर आप जैसे ही कोई ऑर्डर पेयर अंदर एंटर करने जाएंगे तो आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। बराबर,
तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एंड सो वी हैव ओनली 3 रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 48. Show that number of equivalence relation on the set 1 to 3 containing 1 2 and 2 1 is 2. तो सबसे पहले तो हम R1 बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर रिलेशन आपको इक्विवेलेंस बनाना है, तो हमने सबसे पहले तो 1 1 यूज कर लिया, फिर 2 2 यूज कर लेंगे, फिर 3 3 यूज कर लेंगे। अब आपको बोला गया है 1 2 एंड 2 1 कंपल्सरी अंदर रखना है, तो ये हमने रख दिया 1 2 एंड 2 1। नाउ दिस वन इज ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो चुका है, 1 2 एंड 2 1 सिमेट्रिक भी हो चुका है, फ्लिप भी अंदर है एंड ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 एंड 2 1 तो उनका ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो ऑर्डर पेयर 1 1 आ जाएगा, बराबर। सो दिस वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन के हिसाब से ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, मतलब कि और कोई बना सकते हैं तो R2, ये जैसे मैंने बोला कि ये स्मॉलेस्ट है, तो पहले 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1 ये तो हम लिख ही देते हैं, और नई पेयर ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर आ चुका है, 1 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर आया है, तो हमने नया ऑर्डर पेयर एंटर किया 1 3। बट बिकॉज वी वांट इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमको ऑर्डर पेयर 3 1 भी एंटर करना पड़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर पेयर 2 1 है और ये है ऑर्डर पेयर 1 3, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑर्डर पेयर 2 3। अब आपको रिलेशन इक्विवेलेंस बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इसका फ्लिप, मतलब कि 3 2। तो अगर आपने देखा था तो आपको जो सेट दिया गया था वो 1 2 3 था, हमारे पास टोटल अवेलेबल पेयर कितनी थी 9। तो पहले में हम ऑलरेडी 5 पेयर यूज कर चुके थे, हमारे पास 4 पेयर बची थी और वो सभी पेयर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 1 2 3 4 टोटल 9 के 9 ऑर्डर पेयर हम यूज कर चुके हैं। एंड सो वी हैव ओनली 2 equivalence relations, बराबर, equivalence relations containing 1 2 and 2 1 on set containing 1 2 3. This one is 48 and 49. Now moving on 49. अब 49 में आपको बोला है show that number of binary operation on 1 2 having 1 as identity and having 2 as the inverse is exactly 1. Means we have binary operation on set containing 1 2, that is 1 2 cross 1 2 to set containing 1 2, that is star is a function from 1 1 1 2 2 1 and 2 2 to the set 1 2। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है, कंडीशन है 1 is identity, 1 is identity। Now if we say 1 is identity, it means 1 star 1 is compulsory 1, we have no choice, बराबर। नाउ 1 is identity, तो जो हम डेफिनेशन करते हैं आइडेंटिटी की, a स्टार e इक्वल टू a आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टार 1, इसका तो आंसर क्या होगा 2 होना चाहिए। e स्टार a, e स्टार a, इसका भी आंसर क्या होना चाहिए a होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि भाई 1 स्टार 2, ये भी तो आंसर 2 ही होना चाहिए, तो हमको कोई चॉइस नहीं मिल रही है। 1 स्टार 1 के लिए हमारा आंसर फिक्स है, 1 ही होना चाहिए। 2 स्टार 1 ये 2 ही होना चाहिए बिकॉज 1 इज आइडेंटिटी। 1 स्टार 2 ये भी 2 होना चाहिए क्योंकि 1 आइडेंटिटी है। तो यहाँ तक तो हमको कोई चॉइस नहीं मिली है। एक और सेंटेंस हमें दिया गया है 2 हैज इनवर्स ऑफ 2, मतलब हैविंग 2 एज द इनवर्स ऑफ 2। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, a स्टार b
इज इक्वल टू ई आना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 2 इज इनवर्स ऑफ 2, देयरफॉर 2 स्टार 2, 2 एंड 2 आपके ए एंड बी इनवर्स है, तो इनका आंसर आइडेंटिटी होना चाहिए। तो 2 स्टार 2 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमको कोई भी एलिमेंट जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे आंसर हर एक ऑर्डर पेयर के लिए फिक्स है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस दिया गया हो। जैसे 2 स्टार 2 है, अगर इसका आंसर के लिए आपके पास चॉइस होती 1 या तो 2, तो हम ऐसे बोलते कि भाई देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, बट हियर we have for every order pair we have only one choice, and that's why we say there is only one binary operation, right? So therefore there is only one binary operation using these conditions. ओके जो आपको कंडीशन दिया है गया है उसके हिसाब से एक ही बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट वन इज number 50 and then 51. 50 is consider the identity function I of n, that is identity function defined on set of natural number by in of x is equal to x. So here I of n is equal to x because it is identity function for every x belongs to n. Question is show that although in is on 2, but I of n plus I of n from n to n defined as identity on n plus identity on n of x is equal to in of x plus in of x is equal to x plus x equal to 2x is not on 2, ये on 2 नहीं है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में ही in of x equal to x for every x belongs to n. So what is range of this function? So range of this function is exactly n, because if we take x then answer is x, if we select 1 then answer is 1, 2 then answer is 2. So range of in is n, and so we can say in is onto function, बराबर, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो जो आप नंबर सिलेक्ट करेंगे वही आपका आंसर है। अब चलते हैं in प्लस आई ऑफ एन, ये जो हमको सेकेंड फंक्शन दिया गया है उनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो उनका डेफिनेशन है आई एन ऑफ एक्स, आइडेंटिटी ऑन एन ऑफ एक्स प्लस आई एन ऑफ एक्स, that is x plus x, and x plus x is equal to 2x. This one is given for every x belongs to n. So from the definition we can understand that 2x तो ऑलवेज इवन नंबर होगा, बराबर। तो रेंज ऑफ आई ऑफ एन प्लस आई ऑफ एन, आपके आंसर क्या आ जाएंगे, तो आपके आंसर होंगे ऑलवेज 2x फॉर्म में, where x belongs to n. So it is set of even natural, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और आपको फंक्शन का कोडोमेन दिया गया है n, so it is not same as n, and so it is not on 2. I of n plus I of n is not on 2 function because आपका रेंज एंड कोडोमेन दोनों सेम नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 51. Consider the function f from close interval 0 to pi by 2 to r given by fx equal to sin x, and g from close interval 0 to pi by 2 to r given by gx equal to cos x. Show that f and g are 1 1 but f plus g is not 1 1. अब आपको प्रूव करना है f 1 1 है, g
वन वन है, बट f plus g is not वन वन. So for x1 x2 belongs to close interval 0 to pi by 2, x1 not equal to x2, x1 not equal to x2 implies sin of x1 is not equal to sin of x2. बराबर. ये अगर आप दो नंबर लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में से x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, और अगर वो नंबर डिफरेंट होंगे तो sin of x1 एंड sin of x2 भी डिफरेंट ही होगा. व्हाट इज रीजन? because we know that sin is strictly increasing function. बराबर. sin is strictly increasing function. इंक्रीजिंग का सिंबल है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज वन वन होता है, तो डिफरेंट नंबर तो डिफरेंट आंसर ही होंगे. एंड cos of x1 is different from cos of x2. What is reason? Because we know that cos is strictly decreasing function, और कोई भी जो strictly increasing या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो ऑलवेज वन वन फंक्शन होता है, क्योंकि उसको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. अब आते हैं f प्लस जी पर. तो f प्लस जी ऑफ x हो जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x. तो f ऑफ x मतलब sin x एंड g ऑफ x मतलब cos x. यहाँ पर आपका डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि f एंड g का दोनों का डोमेन 0 टू पाई बाई 2 है, तो f प्लस जी का भी सेम डोमेन रहेगा. अब हम फाइंड करते हैं f प्लस जी ऑफ 0. तो f प्लस जी ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस cos 0. Sin 0 is 0 and cos 0 is 1, so your answer is 1. Now we find f plus g of pi by 2. So f plus g of pi by 2 is f of pi by 2 plus g of pi by 2. f of pi by 2 is sin pi by 2 plus cos pi by 2. Sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0. So overall answer is 1. तो फर्स्ट में आपका आंसर 1 आया था, 0 के लिए आंसर 1 है, पाई बाय 2 के लिए भी आपका आंसर 1 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट नंबर बट आंसर सेम है. एंड सो f प्लस जी इज नॉट 1 1. बराबर. तो अगर दो फंक्शन 1 1 है तो उनका एडिशन 1 1 होने की गारंटी नहीं है. दिस वन इज our last miscellaneous example.